बहुत बड़ी खबर आ रही है अभी अभी। मुकुल सिंह चौहान ने इस पूरे इशू को कवर किया है। देखते हैं उनकी रिपोर्ट। आज रात जो कुछ भी हुआ है उससे आंदोलन की दशा और दिशा बदल सकती है। कई सारे अपडेट्स आ गए लगातार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी किया, फोन से रिकॉर्डेड वीडियो जारी किया गया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम लगातार छात्रों के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की बात की है और जिसका मसौदा हमारे पास आ गया है कैबिनेट में। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। हमने विभागों से कहा था कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का मसौदा दीजिए और वो अब हमारे पास आ चुका है। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने अपना जो अनशन था वो 27वें दिन तोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की और जितेंद्र सिंह ने, इन लोगों ने मिलकर उनका अनशन तोड़वाया और उनको आश्वासन दिया कि वो जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है और जो भी उनकी मांगे हैं उनको पॉजिटिवली लिया जा रहा है। कंपनसेशन की मांग को भी पॉजिटिवली लिया जा रहा है और साथ के साथ में जो लगातार ये कहा जा रहा था कि छात्र जो प्रदर्शन में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, ऐसा ना हो कि उन पर केसेस दर्ज कर दिए जाएं। तो इन दो चीजों को लेकर के इन लोगों ने कहा है कि हम इस पर पॉजिटिवली विचार कर रहे हैं। वहीं बड़ा अपडेट सीजेपी की तरफ से है। अभिजीत दीपके जो सीजेपी के फाउंडर हैं, उन्होंने वीडियो जारी करते हुए ये कहा है कि जो सीजेपी का जंतर मंतर का प्रदर्शन है वो अभी भी लगातार जारी रहेगा। बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है दिल्ली से। लाइव ग्राउंड कवरेज वाया पीक टीवी। देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। Today there's a PIL came in the Delhi High Court and that PIL seeks an NIA probe into and it alleges that there was foreign funding involved in the Cockroach Janata Party and in the July 20th protest. See, we've been very clear. The government has all the agencies, they can investigate us as they want. However, through your medium and through the media, I want to tell the judges of this country, I want to tell the high courts, I want to tell the Supreme Court, all honorable courts, please do not be politicized. Please do not be weaponized by people who belong to the right-wing regime. The petitioner in this public interest litigation is Akhil Bharatiya something RSS BJP guy. It's a political PIL. It's not a public interest litigation. It's a Bharatiya Janata Party interest litigation. It's a Modi interest litigation. It's a Amit Shah interest litigation. So the high courts have to be very careful. The judges have to be very careful when they deal with such petitions, because we will not allow our institutions, our honorable institutions, to be weaponized. To be weaponized, because tomorrow what happened with Sonamji will happen with the protesters and us here. The Delhi police, when they brutally picked him up from here, they did not give us any document, they did not share medical advice, anything of that sort. They said this is a high court order, it is basis this that we have picked him up. If basis this PIL, which is very shady, the high court passes an order, the Delhi police, the NIA will flag that order and say this is why we are investigating and that is why they will crack down on the dissenters here, they will suppress voices, they'll brutally torture people here. I don't want the high courts of this country, I don't want our institutions to be party to such politics, such third-rate politics. They have to be very careful. बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है दिल्ली से। लाइव ग्राउंड कवरेज वाया पीक टीवी। देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। Sort of, we also seeing that the protest is spreading beyond Jantar Mantar because Jantar Mantar is fully packed. And yesterday we were there and we saw incidents of stone pelting. How do you control such incidents? Because even if they are goons, they will be seen as a part of the protest because it's this large crowd of the protesters. See, any form of violence, be it in our protest or be it in any other protest organized by the youth of this country on this particular issue, they cannot be tolerated. People who are doing this are not CJP protesters. They are not our people. These are antisocial elements who have infiltrated our protests to derail them. This is the exact script that was followed during the CA-NRC protest, because of which the Delhi riots took place. This is the same script during Punjab, the farmers' protest. Suddenly, there's a vehicle with stones in it, bags of stones in it, placed very close to where the protest is happening. This happened with us on 19th night. We pointed it out to the police immediately. They didn't act at night. The police has to answer where those stones are coming from. These are very high security zones. There are not that many stones at all. So where are those stones coming from? The police has to answer this. They want to create a situation here, but we, through your medium, also appeal to peaceful protesters, to CJP supporters, to the rational, educated youth.
they should be alert about such people. As soon as you see people doing this, make their videos, tag them, point this out to the police, tell them to go catch such people. I've, of course, been here for the last 1 month. I can see that this protest inside Jantar Mantar has been entirely peaceful. It's only now that it is spread outside is where we are seeing these incidents. So is there anything that you guys will try to do to perhaps contain the protest inside Jantar Mantar so it's more under your control? See, Jantar Mantar is jam-packed. There are people who want to do these protests all over the country. We cannot take responsibility for protests that are happening everywhere around the country, everywhere around Delhi. However, what we can do and what is in our scope of things is to appeal to them to be peaceful. We can only do that appeal. If the appeal is not enough and we see more of these incidents, then The police should control it. The police can crack open peaceful protesters' head. They can't control these antisocial elements. Those pelting stones should be acted against. There's never been a doubt from our side. However, using that to target peaceful protesters is a complete no-no. The Delhi police, through your channel, I do want to tell them, please be very careful on how you handle young people. नया अपडेट आ चुका है दिल्ली की गालियों से। प्रियांशा वाई लेकर आई हैं ग्राउंड जीरो से पूरा सच। देखिए उनकी लेटेस्ट वीडियो। सर कहाँ से आए? महाराष्ट्र बॉर्डर गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट। 24 घंटे का सफर है, 1200 किलोमीटर। गाड़ी से आए? हाँ, स्पेशल कार करके आया मैं। तो आप अपनी बच्ची भी लाए हैं? कितने साल की है बच्ची? ये 3 साल की बच्ची है मेरी। क्या प्रोत्साहन किस चीज से आया यहाँ आने के लिए? बस मेरे लड़की का भविष्य और इधर जो अपने ऊपर होना अन्याय है, इसके खिलाफ बस लड़ना चाहता हूँ। जो पुलिस ने बच्चों को पीटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो देखकर जब आपने पुलिस का बर्ताव देखा, यानी कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे आया। मेरे भाइयों पर जो अत्याचार हुआ, मैं कंट्रोल नहीं कर सका। मैं कितने लोगों का चल बोला, मैं पैसे भरता बोला बिल, लेकिन कोई नहीं आया। मैं अकेला मेरे मिसेज के साथ है। मेरा घर में कंट्रोल नहीं हुआ रोना, इसलिए मैं अपना सब कारोबार छोड़ के आ गई। मुझे बहुत रोना आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। मेरे लड़की का भविष्य, हमारा भविष्य, मेरा धंधा पानी सब छोड़ के मैं रात दिन बस यही वीडियो देख रहा था। मुझे बहुत बेकार लगा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं मेरे लड़की को जो सेविंग करके रखा था, वो 25,000 रुपए खर्चा करके मैं स्पेशल गाड़ी करके आया यहाँ पे। अच्छा, सेविंग्स के पैसे से आए? बिल्कुल बिल्कुल। करते क्या है वैसे आप? मेरा छोटा सा धंधा है, वो कार मॉडिफाई का धंधा है मेरा। महीने का कितना कमा लेते? बस 50,000 लगभग। इसमें से 25,000 इस महीने के यहाँ आने में बिता? बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे जैसे और देखेंगे तो वो भी आना चाहिए। इतना अन्याय हो रहा है तो एक आदमी का रेजिग्नेशन देने के लिए उसको क्या हर्ज है? इतने लड़कों का जान लेना क्या जरूरी है क्या एक आदमी के लिए? दिल्ली पुलिस भले ही सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक का खेल खेल रही हो, लेकिन अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड सच बोल रहे हैं। लेडी हार्डिंग अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर हिमानी अहलूवालिया ने पैलेट इंजरी से इनकार नहीं किया, बल्कि टिप्पणी करने से मना कर दिया। वहीं एम्स ट्रॉमा सेंटर के सीनियर अधिकारियों ने ऑन रिकॉर्ड पुष्टि की कि घायल साहिल के शरीर पर पैलेट इंजरीज हैं। डॉक्टरी भाषा में से हाई स्पीड से टकराने वाले छर्रों से हुई चोट कहा गया। एम्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कहा कि मरीज के शरीर के दाहिने हिस्से पर पैलेट इंजरी है और आंख की रोशनी बचेगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। इन दो कहानियों से इतर आउटलुक के एक पत्रकार और एक अन्य युवक भी पैलेट गन से घायल हुए, यानी अभी तक 4 विक्टिम सामने आए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इनकी संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। अब जरा ठहर कर पैलेट गन का इतिहास भी समझ लेते हैं। ये इतनी विवादित क्यों है? ये कोई स्पोर्ट्स एयर गन नहीं है, ये 12 गेज पंप एक्शन शॉटगन कही जाती है। इसके कारतूस में लोहे या शीशे के 500 से 600 छोटे छर्रे होते हैं। जब ये फायर होती है, छर्रे हवा में एक बड़े दायरे में बिखर जाते हैं, यानी निशाना एक शख्स पर साधा जाता है, लेकिन उसकी चपेट में आसपास खड़े दर्जनों लोग आ जाते हैं। इसके छर्रे टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज या नेत्रहीन बना सकते हैं, जान भी जा सकती है। भारत में इसके इतिहास पर नजर डालें तो 2010 में जम्मू कश्मीर में पहली बार प्रदर्शनकारियों पर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। 2016 में हिजबुल कमांडर आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में बेतहाशा पैलेट गन चली पत्थरबाजों के जवाब में। 2023 में मणिपुर की जातीय हिंसा के दौरान भी प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चली। 2024 में पंजाब हरियाणा की शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान भी इसका इस्तेमाल हुआ, जिसे पुलिस ने तब भी नकारा। 2025 में लेह लद्दाख आंदोलन के दौरान इस्तेमाल हुआ और अब 20 जुलाई 2026 को राजधानी दिल्ली के दिल जंतर मंतर और सीपी में इसके इस्तेमाल के दावों ने सवाल खड़े किए। How old are you? 8 years old. 11 years. I am 13. 15. लड़कियों के लिए दिल्ली इतनी सेफ, मैं दिल्ली की हूँ, लेकिन दिल्ली के लिए दिल्ली में सेफ लड़कियाँ मैंने इससे ज्यादा पहले कभी नहीं देखी। इतना भीड़ है, अनसेफ। No, I am not. Because my parents are also here. I am here to get Dharmendra Pradhan istifa. No, not
not even a chance in hell. I'm not feeling unsafe. I'm with my mother. I'm not alone. क्योंकि जो अभी पेपर इतने पेपर लीक हो रहे हैं, सुसाइड हो रही है, उसके लिए रेजिग्नेशन धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए. एंड या वी आर हियर फॉर द स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है. So jam packed the entire area is so many men. It's Delhi. रात के 11-12 बज रहे होंगे. Why are you not feeling unsafe? Because this is the real Delhi. Because protect करना चाहिए, वो हमारे अगेंस्ट में खड़े हैं. Very good to be. मुझे लग रहा है मुझे पुलिस से अनसेफ होना चाहिए. जैसे मैंने 20 जुलाई को देखा था. 8 years old. आप क्यों आए हैं यहाँ पे? Future. He's 13 years old. No, this is so safe and I'm so comfortable. ये वो बिल्कुल भी अनसेफ नहीं लगा. मैं बहुत अच्छे से हूँ. ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. क्या बनना है आपको बड़े हो? डॉक्टर. Talking about men in particular. How their behavior in their demeanor. So helping. मैं मम्मा हूँ उनकी. मैं अपनी बेटियों को लेके आई हूँ, इसीलिए मथुरा से आई हूँ. हम लोग बहुत सेफ है, बहुत सेफ एनवायरनमेंट है. बहुत प्यारी लोग हैं यहाँ पर. बस मैं रिजिग्नेशन चाहती हूँ. मैं रिजाइन चाहती हूँ. लड़कियाँ कह रही 12 बजे दिल्ली में हमें इससे ज्यादा कभी सेफ नहीं लगा. यार ये जो बीजेपी के जितने भी मीडिया मैनेजर्स हैं ना, ये सब के सब एक्चुअल में लुल हैं. फ्रेंड्स, अब दिमाग तो बहुत लगाया है. अरे भैया, जेनजी से कनेक्ट करना है, अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल इतना चेहरे के पास लाने की क्या जरूरत है? आपको पता है जेनजी कैसे हैं? अब वो उनके नाक के बाल गिन रहे हैं. दूसरी बात, जेनजी से अगर कनेक्ट करना है तो अपनी बातों को थोड़ा स्पीड में कहिए. ये कोई मामूली विषय नहीं है. वहाँ लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि मोदी जी जल्दी बोलिए, कल पनवेल निकलना है. तीसरी बात, कोई काम की बात तो की. कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से कम पे कुछ माना ही नहीं जाएगा. एक और लोग मौज ले रहे हैं, कह रहे हैं यार जंतर मंतर पे आपने इंटरनेट बंद कर दिया है और फिर आप कह रहे हो कि मैं सेल्फी वीडियो से कनेक्ट करूंगा उनसे. मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. मोदी जी, आपके मीडिया मैनेजर्स आपको एक और चीज नहीं समझा पा रहे हैं. शायद उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, बुढ़े हो गए सब. जेनजी को पटाना इतना आसान नहीं है. सर, टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है. जेनजी जो हैं वो अपने ऑफिस में बहुत क्यूट पटांग बातों को अपने दिमाग से नहीं लगाते तो फिर क्या बोलूं मैं. ये कोई मामूली विषय नहीं है. सांप्रदायिनी सुपिनी सुखपोसनी. To everybody who is traveling to Jantar Mantar protest site, all the metro stations on Yellow Line from Zorbag to Rajiv Chowk are closed, including Mandi House, Supreme Court. So there is this tweet which DMRC puts up every day on their handle. For latest updates, you can just follow that. Or otherwise, just for information, you can take the New Delhi metro station exit. That's the closest to Jantar Mantar. Do not take exit from Paharganj side. That is a little far from Jantar Mantar and not so accessible. Take the exit from Ajmeri Gate side. Walk, take auto, whatever suits you. And they can never close New Delhi metro station. That's the point. So you can always access the protest site from New Delhi metro station. दोस्तों, मैं ना IT सेल वालों से ये कहना चाहता हूँ कि आप न्यू जेनजी से सोशल वॉरफेयर में कभी नहीं जीत सकते. वो आप लोगों से बहुत आगे है. 20 तारीख को दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स पर ब्रूटलिटी से लाठीचार्ज किया. बच्चों ने क्या किया, इंस्टाग्राम पे पुलिस के लाठीचार्ज के जितने वीडियोस, जितने फ़ोटोज़ थे, सारे निकाल कर उनको प्रिंट आउट निकलाकर और जंतर मंतर पे वॉल पर चिपका दिए और उसको कह दिया वॉल ऑफ शेम. अब ये जंतर मंतर का न्यू अट्रैक्शन केंद्र है. इसीलिए कहते हैं डोंट मेस अप द न्यू जनरेशन ऑफ इंडिया. वंदे मातरम. भारत माता की जय. वो देखो, वो बंदा जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे खाना लेके जा रहा था. पुलिस वाले ने उसे रोक लिया. ये देखो, खाना ले लिया उससे. वो देखो भाई, ये देखो खाना लेके जा रहा है. इसका खाना भी नहीं है. ये प्रोटेस्ट में जा रहा था, खाना ले लिया उसने. वो देखो, वो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स के लिए कोई खाना भेज रहा और ये लोग इतने नीच हैं. उसको पूछा उसने यहीं पे, मैं अभी निकला ही हूँ जस्ट, अभी उसको पूछा प्रोटेस्ट में जा रहा. उसने बोला हाँ. भैंस पूरा का पूरा पैकेट ही उठा लिया उसने. नीच पने की भी हद होती है यार. फक मैन. फाइनली चमत्कार हो गया. मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है मोदी जी ने. सबका मुंह अब बंद हो जाएगा. मैंने आज
फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। वांगचुक जी फास्टिंग करे, मोदी जी चुप। स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ, मोदी जी चुप। पार्लियामेंट अडजर्न हुआ, मोदी जी चुप। पूरी दुनिया ने कवर किया कि दिल्ली के राजधानी के बीच में कैसे पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, तब भी मोदी जी चुप। अब मोदी ने कहा है कि हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बना देंगे, पेपर लीक करने वालों को हम पनिश कर देंगे इस फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए। सरकार ने यह भी कहा है कि हम कॉकरोच जनता पार्टी से बात करेंगे। माय गॉड, पॉपो बात करेंगे हैं? नॉन बायोलॉजिकल छप्पनेश्वर इंसानों से संपर्क बनाएंगे। वाह वाह वाह। सबसे जो दुख की बात है और ये जो मोदी के खोखले वायदे की बात है वो ये है कि 2024 नीट लीक का जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, उसे बेल मिल जाती है। जिस दिन प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं उसे बेल मिल जाती है, क्योंकि सीबीआई उसके खिलाफ चार्जशीट अच्छे तरीके से बना नहीं पाती है। तो कितना खोखला वादा है आप इस बात से समझ सकते हो। ये फास्ट ट्रैक का जो जुमला है, क्यों इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा। बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है दिल्ली से। लाइव ग्राउंड कवरेज वाया पीक टीवी, देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। The Cockroach Janata Party has said that all those protesters who turned unruly yesterday on this very road where I am standing are not real protesters, and Jantar Mantar is where the protest is taking place, and that has remained peaceful. But who are these people? Let's try and get a sense from them. Jantar Mantar के अंदर क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर पा रहे? वहाँ जगह नहीं है या किस वजह? काफी क्राउड है, लोग परेशान है, सरकार को देखना चाहिए। कहीं भी जगह नहीं है, आप उधर चले जाओ, वहाँ भी पूरा क्राउड है, इधर चले जाओ। मैं कई बार मैंने टर्न कर करके देख लिया, बहुत ज्यादा क्राउड है। आप ये बताइए, जैसे कल यहाँ पर हमने एक इंसिडेंट देखा था, हम भी कवर कर रहे थे उसको, जब कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो थे उन्होंने थोड़ा अटैक भी करा एक पुलिस जवान को, तो क्या वो आप क्या कहेंगे, वो इस प्रोटेस्ट का पार्ट है या फिर वो कोई अराजक तत्व थे जो आके उन्होंने हाईजैक कर? नहीं, इसका तो नहीं कह सकते कि अराजक तत्व कितने थे कितने नहीं थे, पर ये पुलिस का फेलियर है। बिल्कुल भी मैनेजमेंट किसी तरीके का नहीं। इतनी भीड़ है, उस तरफ लोग इतने ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, कहाँ जाए लोग? दूर दूर से लोग आए हुए हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई एमपी से। इस तरह का यहाँ पर अभी चक्का जाम लगा रहेगा? जी जी जी, जब तक रहेगा ये। अभी ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर से बाहर हटके रोड पे आ गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी ये एक सिक्योरिटी सिचुएशन भी बन सकती है। नहीं, गलती भी तो है इनकी ना, इनको लाठीचार्ज नहीं करनी चाहिए थी। हम अपने हक के लिए खड़े हैं पहले तो, ना हम किसी बीजेपी को सपोर्ट करें ना कांग्रेस जनता पार्टी को। हम खड़े हैं स्टूडेंट के लिए, बात हम ये है। रोज रोज स्टूडेंटों को मारोगे तो लोग तो सड़कों पे आएंगे। वीडियो देख के लोगों को रहा नहीं जा रहा। सारे लोग यहाँ अपनी फैमिली के साथ लोग यहाँ। आप कहाँ से आए? मैं जोधपुर से, राजस्थान से। कब आया? मैं 2 दिन हो गए। 2 दिन से इसी रोड पे? इसी रोड पे। कल रात भर इसी रोड पे रहे? इसी रोड पे। यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पीसफुल रहे। तो इसके बारे में आप बताइए कि यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व भी हैं आपको लगता है जो प्रोटेस्ट का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? आप देखिए, कुछ देर पहले यहाँ संसद बोर्ड पे एक बंदे को बिठाया गया, जहाँ पे आप देख रहे हैं संसद मार्ग लिखा है, जस्ट बिकॉज टू चेक वेदर कोई पथराव तो नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो यहाँ पे आके रिपोर्ट करें। तो हम चाह रहे हैं कि अमन बना रहे। गांधी हमारे पुरखे थे, तो हम भी उन्हीं के नक्शे कदमों पे। यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो उनको हम आइडेंटिफाई करें। हाँ, आइडेंटिफाई करें और वहीं पे कैप्चर करें, यहाँ तक ना आने। हमारा काम यही है कि हम वायलेंस को कम से कम, उसका मतलब कि आगे ना बढ़े वायलेंस, तो हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अब बाकी अनसोशल एलिमेंट्स कहीं पे भी हो सकते हैं। तो आप सीजेपी से जुड़े हुए हैं कि आप? मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, और एक कॉज के लिए यहाँ पर हैं, और आपको 90% लोग कॉज के लिए ही मिलेंगे। Many of these people saying that they've been here for the past 2 days. You have one of the central roads, one of the most important roads of India being blocked this way by protesters who are saying we will not budge till the time Education Minister Dharmendra Pradhan tenders his resignation. बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है दिल्ली से। लाइव ग्राउंड कवरेज वाया पीक टीवी, देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। क्यों डिसाइड किया है, कैसे डिसाइड किया कि इस प्रोटेस्ट का पार्ट बनना चाहिए? जैसे कि आपने 20 तारीख को देखा कि जो पुलिस वालों ने लड़कियों के साथ गलत किया, बस उसे देखते हुए हमें यहाँ पर उनकी सेफ्टी के लिए जुड़ना पड़ा। कैसे आप उनकी सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं? सेफ्टी यही इंश्योर कर रहे हैं कि जो जितने भी प्रोटेस्टर हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो पीसफुल चलता रहे। हाँ। उनकी तरफ से कोई वो नहीं होना चाहिए। पुलिस वाले भी आप देख सकते हो सुबह से यहीं खड़े हैं, पर इनकी तरफ से कोई अभी एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि हम बीच में खड़े हुए हैं। हम दोनों तरफ से मतलब संभाल के रखा हुआ है सुबह से। कल हमने कुछ वीडियोस भी देखे जिसमें शायद आप ही के साथी जो थे उनकी तरफ से वायलेंस हुआ। 8-9 बजे के करीब पुलिस वालों ने मतलब बुला के यही बोला कि हमारी 2-3 गाड़ियाँ पास करवा दो। हम लोग यहाँ कल रात को 10 आपसे बोला पुलिस वालों ने? हाँ, हमें 3-4 को बुलाया और यही बात बोली
तब हमने कहा ठीक है, एक एक गाड़ी करके बाहर जाएगी, एक साथ तो जा नहीं सकती। जो पहली गाड़ी गई थी उसमें मतलब ये सारा मतलब जितना भी क्राउड है मतलब इस सब ने एकदम से उसे झपट्टा मार लिया। फिर हम 3-4 हम आगे गए, 2-3 पीछे गए, एक छत पे चढ़ गया था वो छोटा सा बच्चा। मतलब वो भीड़ को मतलब हम हटा रहे थे कि मत करो ऐसा, उनका नुकसान उन्हें जाने दो। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को इसलिए बुलाया गया था कि पुलिस का बचाव किया जा सके। प्रोटेस्टर के अगेंस्ट आप पुलिस का बचाव करने आए हैं। हम पुलिस का बचाव क्यों करने आएंगे? हम लोग उनके साथ हैं, इसलिए ये लोग आज यहाँ पर देख लो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैठ के। वैसे इन्होंने मतलब हमें भी बहुत बोला कि इन्हें ऐसा हटा दो, बट हमें इन्हें भी समझाया है कि अगर वो बैठे हैं तो उन्हें बैठे रहने दो, उन्हें मत छेड़ो। आप लोग किरपान लेकर साथ में चलते हैं, ये आपका शस्त्र है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि एक यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट में क्या ये किरपान से लोग डर भी सकते हैं? जितने भी अभी तक सुबह से मिला डरा था कोई नहीं। सब मतलब रिस्पेक्टफुली थैंक यू बोल रहे, धन्यवाद ही बोल रहे कि आप लोग यहाँ पर आए हो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 20 तारीख को ये सब निहत्ते थे। लड़कियों के साथ भी मतलब बहुत ज्यादा गलत हुआ है। इसके चलते हुए जो अगर वो हमारे हाथ में शस्त्र देख रहा है तो वो डर नहीं रहे, उनमें एक अंदर से आत्मशक्ति और आ गई है। लोग ये समझ रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से वायलेंस थ्रेटन करने के लिए ये लेके चल रहे हैं। आपने इतना ही बताएं कि हम लोग उनके प्रोटेस्ट के लिए ही आए हैं। और कल जैसे जो इंसिडेंट हुआ उसमें थोड़ा बहुत वायलेंस जो हुआ आपकी तरफ से, ऐसा आगे भी हो सकता है? हमारी तरफ से नहीं हुआ। अभी भी स्टूडेंट के बीच में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल होने नहीं आ रखे हैं। वो आ रखे हैं प्रोटेस्ट को खराब करने में, माहौल खराब करने में। अभी भी पीछे से कोई बोतलें मार रहा है और पत्थर मार रहा है। हमने उन्हें उनके पास जाके उन्हें समझाया ऐसा मत करो। अगर पुलिस चुपचाप बैठी है तुम अपना प्रोटेस्ट जारी रखो। अगर तुम ऐसे बोतलें और डंडे वगैरह मतलब पत्थर वगैरह मारोगे तो फिर वो एक्शन लेगी, वो आगे आएगी। उनका स्टूडेंट से क्या लेना देना? वो स्टूडेंट मूवमेंट की जो एक छवि थी पीसफुल स्टूडेंट मूवमेंट की, वो आपके आने से कुछ लोग कह रहे हैं खराब भी हो सकती है। वो जानते नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और 20 तारीख को क्या हुआ है। हम लोग तो उसके खिलाफ ही आए हैं जो 20 तारीख को हुआ है। सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ गलत हुआ है। हम अमन बनाने आए हुए हैं। आप देख सकते हो उस दिन 20 तारीख को अगर बंगला साहिब गुरुद्वारा अपने गेट नहीं खोलता तो ये प्रोटेस्ट खत्म था उस दिन। एक नया अपडेट आया है दिल्ली से। इंडिया वॉइस की तरफ से ग्राउंड से सीधा कवरेज, देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। खुद दिल्ली पुलिस का मैं एक जवान हूँ, अच्छी पोजीशन पे। जिस दिन मुझे पता चला था प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, मेरी ड्यूटी लगाई थी, उसी दिन मैं मेडिकल लीव पे चला गया था। दोबारा फोन आया मेरे पास कि आपकी मेडिकल लीव खत्म हो गई है, आप दोबारा आ जाओ। मैं अपनी मेडिकल लीव एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि नहीं होगा। तो मैंने उनको कल उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया ज्वाइन करने के लिए। आज ये मेरा भाई खड़ा साथ में, आज सुबह मैं रिजाइन दे गया हूँ अपनी जॉब से, क्योंकि मुझे छोड़ दी, मुझे चाहिए ही नहीं ना, चाहिए नहीं ना। इतना काबिल बना रखा है मेरे टीचरों ने, मुझे इतना काबिल बना रखा है। क्वार्टर नहीं चाहिए, सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, सरकारी सैलरी नहीं चाहिए। कल मैंने जब फोन करके मैंने उनसे पूछा, भाई कैसे मार दिए डंडे, मतलब तुम्हारा हाथ नहीं कांपा? बोला भाई आंखों से आंसू आ गए, क्या करे। मारते वक्त जो टूटे हुए थे ना, उनके पैर देख के कर रहा था यार इससे अच्छा तो ना साले मरी जाए, इनको मारने से अच्छा तो। पर ऊपर से प्रेशर इतना आ रखा था, इसलिए मैंने अपना रिजाइन दे दिया। अपनी कोई उनका नाम तो नहीं लूंगा, उनकी रोजी रोटी नहीं छीनना चाह रहा मैं। उनको क्लियर ऑर्डर थे, मेरे एब्सेंस में भी मेरी तरफ से ऑर्डर गए थे कि बैच लगा के कोई नहीं जाएगा वहां पे। एक नया अपडेट आया है दिल्ली से। एक्सप्रेशन डी की तरफ से ग्राउंड से सीधा कवरेज, देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। सुअर, दलाल और झूठा नौकरी करने अपने दफ्तर पहुंचे और आपका स्वागत ऐसे अपशब्दों से हो तो आपके लिए कैसी स्थिति होगी। लेकिन एक पत्रकार के लिए कभी भी एक नॉर्मल वर्क डे हो सकता है, खासतौर पर टीवी पत्रकार के लिए। 20 जुलाई की सुबह जब तमाम पत्रकार और कैमरा पर्सन सुबह 6 बजे अपने घरों से जंतर मंतर के लिए निकले तो वो सिर्फ आंखों देखा हाल दर्ज करने गए थे। 21, 22 और आज 23 जुलाई यानी प्रदर्शन के चौथे दिन पत्रकार लगातार प्रदर्शन स्थल पर तैनात हैं। इसमें तमाम बड़े टीवी मीडिया संस्थानों के पत्रकार भी शामिल हैं। मीडिया संस्थान बड़े हैं, पत्रकार शायद उतने बड़े नहीं, माइक के बिना जिनकी पहचान नहीं हो सकती, और वे भी शामिल हैं जो कोई संस्थान नहीं है, इंडिपेंडेंट या सोशल मीडिया बेस्ड। इनकी शर्ट फाड़ते, इन पर पानी, खाली बोतलें, कचरा और लानते फेंकते हुए भीड़ ने भेद नहीं किया। असॉल्ट की अर्हता कैमरा और माइक उनके साथ होना था। तमाम वीडियो वायरल हैं, लेकिन इस बात पर गौर किया जाना जरूरी है कि प्रोटेस्ट में मौजूद पत्रकारों को अब सुरक्षा का डर सिर्फ एक तरफ से नहीं है। उन्हें दिल्ली पुलिस के आंसू गैस के गोले और लाठियां भी लगी और प्रदर्शनकारियों के हाथों भी पिटाई हुई। इसीलिए ये बात आपके लिए समझना महत्वपूर्ण है। आप सरकार के पक्ष में हो, सरकार के विपक्ष में हो, आपकी सहानुभूति आंदोलनकारियों के साथ हो या उनके खिलाफ हो, ये हिंसा
चाहे वो वर्दीधारियों की हो जिन पर ज़्यादा जिम्मेदारी है या फिर नागरिकों की हो, किसी भी किंतु परंतु के तहत जायज़ नहीं ठहराई जा सकती है। आप अपनी राय के लिए, हमारे बारे में भी अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं आपको जाते जाते प्रेमचंद के एक वाक्य के साथ छोड़ जाता हूं कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी, जो लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक खबरें पहुंचा रहा है। शुक्रिया। एक नया अपडेट आया है दिल्ली से, एक्सप्रेशन डी की तरफ से ग्राउंड से सीधा कवरेज। देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। साल 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, उसका मुख्य आरोपी था संजीव मुखिया। सीबीआई ने उसे क्लीन चिट दे दी है। मेरा नाम दीपक है, आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। सीबीआई नीट 2024 में जो पेपर लीक हुआ था उसकी जांच कर रही थी और उस जांच के बाद बिहार पुलिस ने 2024 में इस चोरी को पकड़ा था और उसके बाद उन्होंने पहली एफआईआर जो दर्ज की थी वो संजीव मुखिया पर की थी। उसके बाद वो केस सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई ने आज जो प्रेस रिलीज निकाली उसके मुताबिक उन्होंने इससे माना कि कोई इन पर आरोप सिद्ध नहीं होता है और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। जबकि शुरुआत में इसे मास्टरमाइंड माना जा रहा था, किंगपिन माना जा रहा था कि मुख्य आरोपी है, जिसके बाद से पेपर और जगह लीक होना शुरू हुआ। एजेंसी यानी सीबीआई ने कहा कि उसने पेपर चोरी और आगे बांटने वाले शामिल हर एक व्यक्ति की पहचान की, उन सभी परीक्षार्थियों की भी जिन्हें चोरी हुए इस पेपर से फायदा मिला था। लेकिन संजीव कुमार की इस मामले में कोई भूमिका साबित नहीं हो पाई। एक बात जरूर साबित हो चुकी है कि पेपर लीक हुआ था, छात्रों का जीवन प्रभावित हुआ था, लेकिन आरोपी पर क्या आरोप थे ये नहीं साबित हो पाया है। इसके बाद एजेंसी ने यह भी बताया कि इस केस में एफआईआर में नामजद आरोपी था, सीबीआई ने उसकी हिरासत की थी और सीबीआई के मुताबिक नीट यूजी 2024 के मामले में कोई सबूत सामने नहीं आया। चार्जशीट दाखिल की गई और इसी आधार पर उसे इस केस में जमानत मिल गई। चार्जशीट दर्शकों के लिए बता दें, यानी वो आरोप पत्र, वो दस्तावेज जिसमें जांच एजेंसी अदालत के सामने किसी आरोपी के खिलाफ सबूत और आरोप पेश करती है। डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बताया जाता है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं उस पर क्या क्या आरोप हैं। सीबीआई ने जोर देकर यह कहा कि उसने इस चोरी मामले में विस्तृत जांच की, सभी शामिल लोगों की पहचान की और यह सुनिश्चित किया कि उनमें से कोई भी कानून की पकड़ से न बच सके। एजेंसी ने यह भी कहा कि बात 2024 में ही साफ कर दी गई थी और अब उसकी जानबूझकर अनदेखी किए जाने वाली बात जो फैलाई जा रही है वो तथ्यों के लिहाज से गलत है। ये सीबीआई का वर्जन है, जो घटना का वर्जन तो हमने आपको बता ही दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार आरोपी को बचा रही है। उन्होंने एक्स जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर अपने पर लिखा, ये लीजिए मोदी जी की पूरी सच्चाई सामने आ गई। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, मोदी सरकार ने इसके पीछे के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया, फिर सीबीआई ने जानबूझकर तय समय के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिससे उससे महज 3 महीने में अपने आप जमानत मिल गई। और उसके बाद आज मोदी जी ने सीबीआई से उसे क्लीन चिट दिलवा दी। वाह मोदी जी वाह। ये अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक प्रतिक्रिया थी। इस पर जो खबर हुई, सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। ये राजनीतिक प्रतिक्रिया है, पर इस पूरे दौर का हासिल यही है कि सीबीआई ने जो मुख्य आरोपी था उसे क्लीन चिट दे दी है। जांच अभी भी चल रही है, अभी भी इंतजार है कि न्याय मिलेगा। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। नया अपडेट आया है दिल्ली से, AKASHBANERJEE.in की तरफ से ग्राउंड से सीधा कवरेज। देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। बीजेपी पर सालों से यह आरोप लगता आया है कि यह पार्टी देश को बांटती रहती है, राजनीतिक फायदे के लिए। खतरे में है 80-20, अस वर्सेस देम करके देश में एक गहरा विभाजन कर दिया गया है। किसी भी मुद्दे पर सहमति बनाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। घर के अंदर ही लोग भिड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, और सरकार से कोई सवाल पूछो तो सोरॉस, CIA, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलकर मुद्दा को भड़का दिया जाता है, भुला दिया जाता है। इतना कि देश में सवाल पूछने की प्रथा ही लगभग खत्म हो गई थी। सवाल पूछने का फायदा ही क्या है। लेकिन 2026 में जब छात्रों ने अपनी आवाज उठाई पेपर लीक के मुद्दे पे, तो लगता है मोदी जी ने सोचा आज कुछ तूफानी करते हैं। और फिर सरकार का जो रवैया था उसको देखने के बाद देश के युवाओं में एक आवाज गूंजी, अबे एडिटर ऐसे काम मत कर यार, दिल्ली पुलिस के पास ले जाऊंगा, सीधा जंतर मंतर ले जाऊंगा, अच्छे से पुलिस खातिरदारी करेगी। देश भर में एक ही सुर सुनने को मिला,
धर्मेंद्र प्रधान के मैटर को सरकार 50 दिन पहले ही सुलटा सकती थी, रफा दफा किया जा सकता था इस इशू को, लेकिन अपनी हेकड़ी, अपनी ईगो की वजह से नीट लीक के मुद्दे पर और जो एजुकेशन में जो बदहाली है उसकी जिम्मेदारी सरकार ने लेने से बिल्कुल मना कर दिया। मोदी सरकार ने जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मना कर दिया तो देश को एक मौका मिल गया एकजुट होने का। धर्म, जाति, पार्टी, आइडियोलॉजी का मुद्दा फॉर वंस पीछे हटा और लगभग पूरा देश, जी हां, मैं भक्तगण और बीजेपी समर्थक की भी बात कर रहा हूं, लगभग पूरा देश इस बात पर सहमत हो गया कि भारत की एजुकेशन सिस्टम की लगी पड़ी हुई है। सिर्फ पेपर लीक की बात यहां नहीं है, पूरा सिस्टम सड़ चुका है और कहीं ना कहीं सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। अरे दिखावट के लिए सही, कहीं ना कहीं तो स्टार्टिंग करनी होगी, तो उसके लिए प्रधान को जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो पहले से ही नीट के मुद्दे पर लड़ती आई थी, उसने भी अपने तेवर तेज कर दिए। जब स्टूडेंट्स पर जो हमला हुआ उसके बाद कांग्रेस को भी यह बात एक्सेप्टेबल नहीं लगी। राहुल गांधी समेत कई लीडर्स तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के सामने आ धमके, क्योंकि सरकार ने एजुकेशन के बारे में, नीट के बारे में संसद में डिबेट के लिए भी मना कर दिया था। जबरदस्त प्रोटेस्ट होता है, राहुल को फिर मोदी पुलिस वहां से घसीट कर ले जाती है, अरेस्ट किया जाता है। पूरे देश में मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नजारे जो थे वो फिर से नजर आते हैं। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। लेकिन क्या ये जो एकजुट, ये जो यूनिटी है, असली मुद्दों पर बात करना है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर इतनी सारी जो रील्स बनाई जा रही हैं, ये ट्रेंड टिक पाएगा या सिर्फ एक फैड रह जाएगा?